Jai Hind, dear students. I Akash Parma welcome you all on my YouTube channel. Students, today I am going to explain you polynomial class 10th. This is very important chapter for you all. बहुत ही important है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी. Here I have explained about the geometrical representation of the polynomial. Students, about polynomial, degree of polynomial, these all are the things you have read in your previous classes. In class 10th, we will start from the geometrical representation of the polynomial. Okay, so I hope you will watch the video at last, and whatever the doubts, just ask me and clear your doubts. Don't be hesitant. If you will not ask the doubt, your concept will not be clear. That's why it's your duty to ask the questions with your teachers. Must ask whatever the doubts you are facing, whether it is easy or difficult. From here you can clear your concept. So that's why the things which I am going to start, whatever the doubts will be there, you will ask. Let's start the things. तो मैथमेटिक्स क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पॉलिनोमियल, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द थिंग्स. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द टर्म पॉलिनोमियल. व्हाट इज पॉलिनोमियल? स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल is nothing special. In your previous classes, students, you have read about algebraic expression. So polynomial is an algebraic expression in which the power of variable is a positive integer. In polynomial, the power of variable must be a positive integer, students. This keep in your mind. Students, let me tell you, x square plus 5x plus 3, this is a polynomial because power of the variable is a positive integer. This is an algebraic expression in which power of the variable is a positive integer. If the power of the variable will not be a positive integer, it will not be a polynomial. It's clear or not? Nine x minus 2 plus 3, this will not be a polynomial because the power of the variable is a negative integer. It must be a positive integer. It should not be in root, it should not be decimal, it should not be in fraction, it should not be in negative. Only it should be positive. Are you understanding this? What is polynomial? Okay, students. Now let us start. Polynomial, I should tell you, on the basis of term, there is monomial, binomial, trinomial. Monomial, on basis of term, monomial, binomial, trinomial. In monomial, students, you have read there is only one term. 3x 5x to the power 5. This is monomial. Because only one term. In case of binomial, there will be two terms. An algebraic expression or a polynomial which is having two terms, 3x 3z plus 8, 7x square plus 5, like this, that will be binomial. In trinomial there will be three terms, and in multinomial there will be four terms, more than four terms you can say. This is the type of polynomial on the basis of term.
Now I will tell you types of polynomial on the basis of degree, students. Before that, we will understand what is the degree of the polynomial. We will understand the degree of the polynomial. The highest power of the variable in a polynomial is called as the degree of the polynomial. In any polynomial, whatever the highest power of the variable, students, that will be the degree of the polynomial. Here you can see x to the power 5 minus x cube plus 7. The degree of the polynomial will be 5 because maximum power of the variable is 5. It's clear or not? Okay, students. Now let me tell you linear polynomial. On the basis of degree, now I am going to define you about the linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. ऐसा polynomial जिसकी डिग्री 1 हो, स्टूडेंट्स, उसको linear polynomial कहते हैं. It's clear or not? 2x minus 7, 2x minus 7 पहला. Second, s plus 5, 3x plus y plus z, ये भी linear polynomial because power of the variable is 1. Quadratic polynomial, a polynomial having highest degree of 2 is called quadratic polynomial. The term quadratic is derived from word quadrate, which means square. In general, quadratic polynomial can be expressed as ax square plus bx plus c. Now it's clear from here. The highest power of the variable must be 2. Here x square minus 9, a square plus a plus 7. This is quadratic polynomial. In cubic polynomial, same as the highest power of the variable will be 3. The general form of the cubic polynomial, ax cube plus bx square plus cx plus d. It's clear, students? You can see it. Zeros of polynomial, let me tell you, very important thing. Zeros of the polynomial means, students, x की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, जिस वैल्यू को रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं. स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू, सपोज दैट पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल that will be x plus 2. Here what will be the zeros of the polynomial? Zeros of the polynomial जो इसको जीरो कर दे. तो स्टूडेंट्स यहां से क्लियर है कि अगर x की जगह हम -2 रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू ये जीरो हो जाएगी. तो p और x की जगह मैंने -2 कर दिया, तो ये -2 + 2 विल बी जीरो. तो यहां से क्लियर है स्टूडेंट्स कि या x बराबर -2 विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर दिस एक्सप्रेशन. इट्स क्लियर और नॉट? अब आफ्टर दैट वी विल study here geometrical meaning of the zeros of the polynomial. For a linear polynomial, the general form of the linear polynomial, students, ax plus b, where a is not equal to 0. If there a is not equal to 0, where is a is not equal to 0? Because a will be 0, then it will not be a linear polynomial. It will be a constant polynomial. That's why the a is not equal to 0. A and b are the real numbers. Straight line. The graph of the zeros of the linear polynomial will be a straight line. एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो एक्स एक्सिस को की एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूं. जैसे y बराबर 2x माइनस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है. अब x की क्या वैल्यू रखें कि y जीरो हो जाए? अब देखिए, अब यहां पे x क्या रखेंगे?
कि y 0 हो जाए, तो यहाँ पे x की जगह 3/2 रखने पे y की वैल्यू 0 आ रही है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स क्लियर है कि ये जो ग्राफ बनता है लीनियर पॉलिनोमियल का, स्टूडेंट्स जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। मतलब एक्स एक्स एक्सिस को उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तभी तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो ये आपका क्लियर है यहाँ से कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका 1 0 होता है, 1 zeros होते हैं केवल। स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। लीनियर पॉलिनोमियल याद रखिएगा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इन जनरल फॉर ए, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ax² + bx + c = 0 होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो दैट विल नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ जो स्टूडेंट्स बनता है वो कुछ इस तरह का होता है, या कर्व डाउनवर्ड्स या कर्व अपवर्ड्स, इस तरह से ग्राफ बनते हैं। वो अभी दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब ये डिपेंड करता है कि ए क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो कर्व अपवर्ड और लेस देन 0 होगा तो कर्व डाउनवर्ड्स। क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस होता है वो या तो नो जीरोस होगा, देयर विल बी नो रियल नंबर, या तो 1 होगा या तो 2 जीरोस होगा। ये 3 केसेस होते हैं। अगर कोई जीरोस नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, स्टूडेंट्स 3 केसेस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, नील 1 और 2 जीरोस। यानी या तो दो वैल्यू रखने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाए, या एक पे रखने पर दोनों, मतलब दोनों इक्वल हो, वो भी बताएंगे दोनों इक्वल हो। देयर आर नो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px = x² + 1 and thus the graph of this polynomial does not intersect x-axis. तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि x² x की क्या वैल्यू रखोगे कि 0 आए, तो किसी वैल्यू पर इसके x की वैल्यू ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तो यानी एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वो अभी ग्राफ दिखा रहा है x² + 1 का। 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए यहाँ पे है, ये केवल और 2 रखने पर ही इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब कि द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस वंस एट x = 2। 2 बार तो दिखाएंगे नहीं, दोनों वैल्यू इक्वल हो कि x = 2 हो कि, वो भी मैं दिखा रहा हूँ अभी। अब 2 जीरोस कब होंगे, x² - 4 दैट इज +2 - 2 एंड दस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 प्लेसेस x = 2। ये देखिए तीनों ग्राफ मैंने यहाँ पे लिया है, आपको दिखा रहा हूँ। x² + 2 का पहले देख लीजिए, सॉरी x² + 1 का। तो x² + 1 वाला केस जो था ये है आपका। आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज देयर आर नो जीरोस। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही जीरोस को बताता है। x² - 4x + 4 2, 0 स्टूडेंट्स देखिए एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देयर विल बी 1 0। x² - 4 ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देयर विल बी 2 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है स्टूडेंट्स। Cubic polynomial. This is the general form of the cubic polynomial, has 1, 2 or 3 zeros. There can't be any cubic polynomial with nil zeros. इसमें एक होगा या दो होगा या तीन होगा, नील नहीं होता इसमें। There is 1 0 of cubic polynomial px = x³ that is 0 and thus the graph of this polynomial intersect x-axis once at x = 0. इसमें क्या होगा कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसका केवल और केवल एक 0 होगा और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को x = 0 पर इंटरसेक्ट करेगा। 2 जीरोस होगा, x³ - x² एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 0 एंड 1 होगा एंड दस द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट x एक्सिस एट 2 प्लेसेस x = 0 एंड x = 1।
3 जीरोस कब होगा स्टूडेंट्स, वो उसका भी एग्जांपल मैंने लिया, एक्स क्यूब माइनस 4x, 0 + 2 एंड -2 एंड दस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द 3 प्लेसेस। तो ये देख लीजिए, आप रख के भी देख सकते हैं, 0 यहाँ रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो अभी 0, -2 रखेंगे तभी 0। ये देखिए 1 प्लेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ को, यहाँ पे देखिए ये 2 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये 3 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, एक्स क्यूब का है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का है, एक्स क्यूब माइनस 4x का है। स्टूडेंट्स आई होप इट इज़ क्लियर। कोई डाउट होगा तो आप भेज दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। In general, given a polynomial px of degree n, the graph of y बराबर px intersects the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros. इसका मतलब ये है कि जैसा पॉलिनोमियल होगा, अगर लीनियर है तो मैक्सिमम 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर, और क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पर ग्राफ को एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, इसमें कितने जीरोस होंगे बताने हैं, 1 2 3 4 जीरोस हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यू कैन सी इट। देखिए अब यहाँ बताना है आपको, द एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी, द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो द सम पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स इन ईच केस। स्टूडेंट्स आपको बताना है, देखिए इसमें देखिए एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, देयर विल बी नो जीरोस। क्लियर है? यहाँ पे एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स, देयर विल बी 1 जीरोस। आपको यही बताना है। नील, यहाँ 1 2 3 स्टूडेंट्स, यू कैन सी 3 जीरोस इन 1 2 3। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, देयर विल बी 2 जीरोस। 1 2 3 4, देयर विल बी 4 जीरोस। 1 2 3, देयर विल बी 3 जीरोस। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप इट इज़ क्लियर। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैंने लिया है, रिप्रेजेंट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 4x ग्राफिकली, वी विल ड्रा दिस लाइक। तो हियर यू कैन सी there are 3 zeros, 1 2 3, there are 3 zeros. So you can draw it by taking the value of x, you will get the value of y. if you अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब करने के बाद यू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification of next video. Thanks for watching the video. Have a nice day.